So, hello dear students, today we are starting the problem solving strategy for the topic KTG and thermodynamics. So, let's move to the questions. The first question is, a vessel contains 1 mole of oxygen gas, molar mass is 32, at a temperature T, the pressure of the gas is P, an identical vessel containing 1 mole of helium gas at a temperature 2T has a pressure of. So now हम जब जो कि हम मानते हैं यहाँ पर आइडियल गैसेस की जब बात की जाती है तो जो आइडियल गैसेस में वेसल का वॉल्यूम होता है वही आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है। और जब भी केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के सवालों में अनटिल एंड अनलेस कुछ रियल गैस के बारे में बोला हो, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहाँ पर जो भी गैस मानते हैं वो आइडियल गैस ही होती है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि कोई एक वेसल है जिसमें 1 मोल ऑक्सीजन गैस भरी हुई है और दूसरा एक आइडेंटिकल वेसल है, मतलब आइडेंटिकल वेसल है तो वॉल्यूम सेम हो गया, उसमें भी 1 मोल हीलियम गैस भरी हुई है एट अ टेम्परेचर T 2T। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो T है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 2T है। ये एक सिंपल PV इक्वल टू NRT के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पर मोलर मास का हमें कुछ काम नहीं है, मेनली यहाँ पर ये पूछा गया है कि प्रेशर यहाँ पर कितना होगा अगर प्रेशर यहाँ पर P था तो हम जानते हैं PV इक्वल टू NRT होता है, दोनों के मोल्स का नंबर सेम है। यहाँ पर प्रेशर हमने मान लिया P डैश, तो अगर मैं यहाँ पर PV इक्वल टू NRT अप्लाई करूँ तो P इंटू वी इक्वल टू 1 इंटू RT, एंड अगर मैं यहाँ पर वो अप्लाई करूँ तो P डैश इंटू वी इक्वल टू 1 इंटू R इंटू 2T। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2, if we divide both the equations, so if 2 divided by 1, we will get P dash upon P as 2. So P dash will be equal to 2P. So this will be the answer of this problem. The pressure will be 2P. Now let's move to the next question. The next question is, during an experiment, an ideal gas obeys an addition equation of state P square into V equal to constant. The initial temperature and volume of gas are T and V respectively. When it expands to volume 2V, then its temperature will be. So now the relation is given P square V as constant, but an initial temperature and volumes are given. तो इनिशियल अगर मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम लिखता हूं तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें फाइनल टेम्परेचर बताना है, फाइनल टेम्परेचर बताना है जब वॉल्यूम 2V हो जाता है। तो फाइनल टेम्परेचर हमने मान लिया, लेट्स सपोज इट इज T डैश एंड द वॉल्यूम विल बी 2V। सो नाउ वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन विच इज इन P and V into an equation which relates temperature and volume. So as we know that the gas is ideal gas, so here we can use PV equal to nRT. So now by using PV equal to nRT, we can substitute P from here. तो अगर हम वहाँ पर P को पुट करें तो ये P आएगा nRT upon V to the power 2 into V equal to constant. So now as n and R both are constants, so we can write T square into V to the power minus 1 equal to constant, which means T square by V equal to constant. So now we can use this expression for obtaining the result. So T square upon V must be equal to T dash square upon 2V. So from here we get T dash equal to root 2T. So the temperature of the gas when its volume will be 2V will be root 2 times the initial temperature. So now let's move to the next question. The next question is, 1 mole of an ideal diatomic gas is taken through the cycle as shown in the figure. From 1 to 2 there is an isochoric process, the volume is constant. From 2 to 3 a straight line on PV diagram which is shown like this, and from 3 to 1 an isobaric process, pressure is constant. So now the average molecular speed of the gas in the states 1, 2 and 3 are in the ratio. मतलब हमें यहाँ पर
यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीनों स्टेट्स पर जब गैस होगी तो इन तीनों स्टेट्स पर जो उसकी एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड होगी उसका रेशियो में बताना है। तो एज वी नो दैट कि अगर हम एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड, चाहे वो मोलर स्पीड, एवरेज मोलर स्पीड हो या मॉलिक्यूलर स्पीड हो, हम ये जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो होती है रूट ओवर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है रूट 8RT बाई पाई एम होता है, मीन स्पीड का फॉर्मूला, तो वो रूट ओवर टी के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब 1 नंबर पॉइंट पर, 2 नंबर पॉइंट पर एंड 3 नंबर पॉइंट पर, ये तीनों स्टेट्स पर जो टेम्परेचर्स होंगे उनका जो रूट ओवर टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वही एवरेज स्पीड का रेशियो होगा। सो नाउ अब हमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इन तीनों ही पॉइंट्स पर, इन तीनों स्टेट्स पर गैस का टेम्परेचर्स निकाल लेने हैं। तो अगर हम सबसे पहले वाले पॉइंट की बात करें तो ये एक आइडियल डायटोमिक गैस है, तो ये PV इक्वल टू NRT को फॉलो करेगी। तो अगर हम पहले वाले पॉइंट पर टेम्परेचर अगर हम मान लेते हैं T1 होगा, दूसरे वाले पर टेम्परेचर T2 होगा और तीसरे वाले पर टेम्परेचर T3 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि P0 V0 पहले वाले पॉइंट के लिए P0 V0 मस्ट बी इक्वल टू NR T1। सो T1 विल बी P0 V0 बाई NR। दूसरे वाले पॉइंट के लिए अगर हम बात करते हैं, वैसे 1 मोल है तो n को हम 1 पुट कर सकते हैं वहां पर, तो n को 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा P0 V0 बाई R। सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले पॉइंट के लिए बात करते हैं स्टेट नंबर 2 के लिए, तो आ जाएगा 4 P0 V0 बाई R। सो इट विल बी फॉर T2 इट विल बी 4 P0 V0 बाई R, एंड फॉर द पॉइंट 3, द स्टेट 3, it will be 4 P0 V0 by R again, because volume is 4 V0 and pressure is P0, so it will be 4 P0 V0 by R. So the average molecular speeds का जो रेशियो होगा वो होगा रूट ओवर T1 रेशियो रूट ओवर T2 रेशियो रूट ओवर T3, और अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा रूट ओवर 1 रेशियो रूट ओवर 4 रेशियो रूट ओवर 4, which will be 1:2:2. So the answer of this problem will be 1:2:2, which is option number A. Now let's move to the next question. The next question is, find the pressure at a height h from the surface of earth if pressure at the surface is P0 and the mean molar mass of the atmosphere is m, the acceleration due to gravity is g and the temperature is T. So now हमें बताना है कि अगर मान लीजिए कि अर्थ है, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर, तो मैं अर्थ की सरफेस से किसी h हाइट पर जाता हूं, और क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं हाइट चेंज करता हूं मेरा प्रेशर जो है वो वेरी करता जाता है। हमें पता है कि जैसे ही हम किसी भी गैस के अंदर अगर हम कोई हाइट चेंज करते हैं, या फिर हम किसी भी फ्लूइड के अंदर, या आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि P इक्वल टू, अगर हम किसी एक कंटेनर में बात करते हैं तो अगर यहाँ पर प्रेशर P0 है तो इसके अंदर H डेप्थ पर जाकर यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर इसकी डेंसिटी रो है, तो यही चीज़ सिमिलरली फ्लूइड के लिए लागू है, वही चीज़ फ्लूइड और लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए लागू है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर किसी हाइट पर अर्थ की सरफेस से जाएंगे, तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ जाने पर कम होता जाएगा। तो हम यहाँ पर मानते हैं, लेट सपोज कि हम किसी हाइट h पर हैं और यहाँ पर प्रेशर जो था वो P था, और जैसे ही हमने यहाँ पर हाइट के अंदर थोड़ा सा चेंज किया, मतलब हमने यहाँ पर DH हाइट में चेंज किया, तो प्रेशर ऊपर जाकर P प्लस DP हो गया, ये हमने मान लिया। हमेशा जब भी हम एलिमेंट लेते हैं तो हम इंक्रीमेंटल एलिमेंट लेते हैं, मतलब हम x पर जाकर dx को बढ़ाते हैं तो p पर जाकर dp को सिमिलरली बढ़ाते हैं। अगर वो कम हो रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर डेंसिटी जो है वो गैस की रो है, जो भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो रो है, तो हम ये मान सकते हैं DH हाइट के लिए h पर जाकर जो DH का एलिमेंट लिया वो बहुत छोटी हाइट है, तो उसके लिए हम डेंसिटी को लगभग रो कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि वो h में हमने बहुत ही छोटा चेंज किया है। तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर के चेंज की बात करें तो प्रेशर ऑब्वियसली ऊपर वाला प्रेशर जो होगा कम होगा, नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये dp जो होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस ऑफ रो जी डी एच, विच इज़ द कॉलम की वजह से जो भी प्रेशर का चेंज आया, दैट इज माइनस ऑफ रो जी डी एच, सिमिलर जो अभी हमने बात की।
तो dp इक्वल टू माइनस रो जी डी एच। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अगर सरफेस पर प्रेशर पी नॉट था यहां पर, एच हाइट पर जाकर पी प्रेशर कितना होगा। तो हमें ये बताना है, उसके लिए हमको यहां पर क्या करना होगा कि ये dp, अब यहां पर देखिए वेरिएबल क्या क्या है, dp जो है एक वेरिएबल है, डेंसिटी जो है गैस की वो वेरिएबल है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट, हाइट इज वेरिएबल। सो अब हम यहां पर ये देख सकते हैं कि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट फ्रॉम द डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन इट इज pm इक्वल टू रो आर टी। सो नाउ this rho can be written as Pm upon RT. So now if we replace this rho here, we will get dP equal to minus of Pm by RT into GDH. So now अगर हम इस P को इधर लेकर आते हैं तो dP upon P equal to minus mg by RT times dH. Now if we integrate it both sides, when we were at the surface of earth, h was 0, the pressure was p naught, and at a height h pressure becomes p. So now if we integrate it, 1 upon dp upon p, इसका इंटीग्रेशन होगा ln of p upper limit p lower limit p naught must be equal to minus mg upon rt. mg molar, mean molar mass is constant, temperature is constant, gas constant is a constant, and acceleration due to gravity is constant, and dh का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका h, अपर लिमिट h, लोअर लिमिट 0. सो नाउ ये निकल कर आता है आपके पास में ln p माइनस ln p नॉट इक्वल टू माइनस mg बाई आर टी टाइम्स h माइनस 0. सो इट विल बी ln ऑफ p बाई p नॉट इक्वल टू minus of mgh by RT. So if we remove this natural log, we will get minus e to the power minus mgh by RT. So the pressure at height h becomes P equal to P naught into e to the power minus mgh by RT, which is the solution of this problem. So this is the expression of pressure by varying the height from surface of earth, which is also known as barometric relation. Now let's move to the next question. The next question is, consider a gas for which diameter of molecules is sigma. The gas is at a pressure P and a temperature T, and Na is Avogadro's number. The mean free path along x-axis is. So आपने पढ़ा होगा मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है, जो एक्सप्रेशन होता है 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन, वेयर सिग्मा इज डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब हमें यहां पर क्या बताना है, हमें यहां पर बताना है मीन फ्री पाथ अलोंग एक्स एक्सिस. लेट सपोज कि अगर मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है जो कि कोई एक मॉलिक्यूल है जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में चल रहा है, तो हम ये मानते हैं कि अगर वो एक मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल तीनों डायमेंशंस में वो इस तरह से चलेगा ताकि उसका तीनों डायमेंशंस के अलोंग जो मीन कंपोनेंट होगा वो सेम होगा. मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो सेम होंगे. मतलब अगर ये एक लैम्डा मीन फ्री पाथ है किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में, इट कैन बी रिटन एज लैम्डा एक्स आई कैप प्लस लैम्डा वाई जे कैप प्लस लैम्डा जेड के कैप. दिस लैम्डा लेट सपोज आर कैप. इसका मतलब ये जो लैम्डा है 3 डायमेंशनल स्पेस में वो एक्स वाई और जेड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. एंड एक्स वाई जेड अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हम जानते हैं अगर ये तीनों इक्वल हैं तो अगर किसी एक डायमेंशन में उसकी वैल्यू लैम्डा है तो ये √3 टाइम्स ये हो जाएगा √3 टाइम्स लैम्डा किसी भी एक डायमेंशन का. हमें जो निकालना है वो एक्स का निकालना है, तो मैं मान लेता हूं √3 टाइम्स लैम्डा एक्स मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा. सो लैम्डा एक्स विल बी लैम्डा अपॉन √3. नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ लैम्डा.
तो लैम्डा का एक्सप्रेशन जो हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। तो उसको हम अगर √3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में लैम्डा एक्स वाला आ जाएगा विच इज 1/√6 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन। बट जब हम यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं तो हमें यहाँ पर स्मॉल एन कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, हमें यहाँ पर आर टी और प्रेशर एंड एवोगैड्रो नंबर नजर आ रहा है। उसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये जो एन है यह है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो स्मॉल एन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम total number of molecules per unit volume. So it can be written as it is total number of molecules per unit volume and mean free path हमसे पूछा है, हमसे यहाँ पर mean free path पूछा गया along the x axis। तो हम यहाँ पर total number of molecules per unit volume अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये v ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर √6 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ पर निकल कर। अब हमें इस v को अगेन आर टी और P की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। वी नो दैट PV इक्वल टू nRT। दिस इज n इज नंबर ऑफ मोल्स, दिस n इज डिफरेंट, समटाइम्स वी कैन राइट इट एज n स्टार। सो PV इक्वल टू nRT। सो ऑन रिप्लेसिंग V, we will get small n RT upon √6 pi sigma square √6 pi sigma square capital N upon P. So it will become, now this small n upon n, so we know that capital N is small n times Na. So capital N upon small n will be equal to Na, which is Avogadro's number. So capital N upon small n will become Na. So RT upon √6 pi sigma square Na into P. This must be the answer of this problem, which is the option number C. So now let's move to the next question. The next question is also about mean free path. A gas undergoes isobaric heating. The mean free path of the gas depends on the temperature as lambda is directly proportional to temperature to the power A. The number of collisions that gas molecules undergo per second depends on temperature as dN by dt is directly proportional to T to the power B. So A और B की वैल्यू क्या होंगी हमें बताना है। तो जैसा कि हम लास्ट एक्सप्रेशन में अभी देख चुके हैं कि यहाँ पर अगर हम आइसोबैरिक हीटिंग की बात कर रहे हैं, हमारे पास में जो मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला था, जो टेम्परेचर के आइसोबैरिक हीटिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर के साथ में प्रोपोर्शनैलिटी चाहते हैं तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, और आइसोबैरिक प्रोसेस में आप जानते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो हमारा जो लास्ट एक्सप्रेशन जो निकल कर आया था, अगर हम इस एक्सप्रेशन को लैम्डा की टर्म्स में ही बात करें, मतलब मीन फ्री पाथ की टर्म्स में बात करें, अगर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर मीन फ्री पाथ की टर्म्स में बात करें, मतलब लैम्डा एक्स की टर्म्स में बात ना करें, तो यहाँ पर √2 ही आएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो लैम्डा जो आपका होता है वो होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार, विच इज एन, वेर एन स्टार इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड जब हम इसको लिखते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। एंड अगेन हम V को लिख सकते हैं nRT by P. So it will be, lambda will be nRT upon √2 pi n square sigma square P into capital N. So अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट होते हैं गैस के, या फिर आप चाहें तो अगेन इस स्मॉल n को नीचे ले आएंगे तो ये Na बन जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में ही किया है अभी। तो ये बन जाएगा आपका Na. सो इट विल बी लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पर R कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि आइसोबैरिक हीटिंग है, Na कांस्टेंट है, सिग्मा मॉलिक्यूल का डायमीटर कांस्टेंट है, √2 पाई कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 1 मीन्स A विल बी इक्वल टू 1। तो इस A की वैल्यू आ गई आपके पास में 1। नाउ द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट गैस मॉलिक्यूल्स अंडरगो पर सेकेंड, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स
पर सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड जो आएंगे वो आएंगे जो गैस की आरएमएस स्पीड होगी वी आरएमएस अपॉन लैम्डा। वी आरएमएस अपॉन लैम्डा क्यों? क्योंकि लैम्डा है मीन फ्री पाथ। लैम्डा है मीन फ्री पाथ मतलब अगर दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स होते हैं उनके बीच में जो है वो लैम्डा मूव करता है गैस का मॉलिक्यूल एवरेज। अगर गैस का मॉलिक्यूल लैम्डा मूव करने पर एक बार कोलाइड करता है, मतलब एक कोलिजन के बाद में दूसरा कोलिजन होता है लैम्डा मूव करने पर, हमसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। तो अगर हम ये बोलते हैं कि अगर और ये यहां से यहां तक चलने में मान लीजिए टी समय लेता है विच इज ऑल्सो नोन एज टाउ विच इज मीन फ्री टाइम। तो अगर ये यहां से यहां तक आने में टाउ समय लेता है मीन फ्री टाइम, तो हम ये बोल सकते हैं कि टाउ समय के अंदर एक कोलिजन होता है। तो अगर एक कोलिजन होता है टाउ सेकंड के अंदर, तो अगर एक कोलिजन होता है टाउ सेकंड के अंदर या टाउ सेकंड के अंदर एक कोलिजन होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक सेकंड के अंदर 1/टाउ कोलिजन्स होंगे। एक सेकंड के अंदर 1/टाउ कोलिजन्स होंगे और हमसे पूछा गया है 1/टाउ, मतलब हमसे नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड ही पूछे गए विच इज 1/टाउ एंड टाउ वी कैन राइट एज टाउ विल बी lambda upon VRMS, distance upon speed, we can easily remember it, distance upon speed. So dN by dt will be VRMS upon lambda. So VRMS is root over 3 RT by M. ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होगा, नहीं याद है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, VRMS रूट 3 RT by M। और लैम्डा को जो हमने टेम्परेचर के सेंस में जो हमने लैम्डा का एक्सप्रेशन निकाला है उसको अगर हम वहाँ पर पुट कर देते हैं तो वो आ जाएगा आपके पास में इंटू RT over root 2 pi n pi sigma square PNA, root 2 pi sigma square PNA. So now from here we can easily see that dN by dt is directly proportional to 1 upon root over temperature. Everything else is a constant. So dN by dt is directly proportional to t to the power minus half. So the value of B becomes minus half. So the answer of this problem will be A की value 1 and B की value minus half. The answer of this problem will be option number C. Now let's move to the next question. 1 mole of a monoatomic gas is mixed with the 3 moles of a diatomic gas. The molecular specific heat of mixture at constant volume is this: alpha square by 4 R joule per Kelvin per mole. Then the value of A will be, I think it is asking the value of alpha. So the value of alpha will be what? So 1 mole monoatomic gas का, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस को, मोनोएटॉमिक गैस जो होती है वो होती है, अगर हम यहाँ पर मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर के अंदर अगर हमारे पास में एक N1 जो है वो 1 मोल है और CV1 जो इसका CV होगा वो होगा, हमें पता है CV का फॉर्मूला जो होता है वो F/2R होता है। तो F/2R मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, तो 3/2R इसका CV1 आ गया। और जो हमारी दूसरी गैस है जो कि डायटोमिक गैस है उसके हमने मिलाए हैं 3 मोल्स, तो N2 जो हो गया आपके पास में 3 मोल्स N2 हो गया और उसका जो CV2 होगा वो हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि वो डायटोमिक गैस है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी, तो 5/2R। तो अब हमें यहाँ पर अगर उस पूरे मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब CV इक्विवेलेंट या फिर CV ऑफ मिक्सचर वो हमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बाई 4। तो अगर CV ऑफ मिक्सचर के बारे में बात की जाए तो आप इसको एनर्जी कंजर्वेशन से इजीली कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा इसको लिखकर बता देता हूं कि अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों की टोटल एनर्जीज ऐड होंगी। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो होती है N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 इक्वल टू N1 प्लस N2 टाइम्स CV इक्विवेलेंट इंटू T3। बट अगर हम किसी मिक्सचर की बात करते हैं और मिक्सचर में हमने दो चीज़ों को मिलाया, चाहे हमने सेम टेम्परेचर पर मिलाया हो या हमने अलग टेम्परेचर पर मिलाया हो, फाइनली उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। सो दिस टेम्परेचर फाइनली जो टेम्परेचर होगा दोनों का वो मिक्सचर के टेम्परेचर के बराबर होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस एंड दिस T गेट्स कैंसल्ड आउट। तो हमारे पास में CV इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। सो नाउ
by using this formula we can get alpha square by 4r must be equal to n1 is 1, cv1 is 3 by 2r plus n2 equal to 3, cv2 is 5 by 2r and upon n1 plus n2 1 plus 3 it will 4. So this 4 gets cancelled out, r also gets cancelled out, so we get the value of alpha square as 18 by 2, so it will be 9, so alpha will be 3. So the answer of this problem will be alpha equal to 3. So it is the very simple problem on the basis of the mixture. So now let's move to the next question. The next question is, two identical vessels A and B contain equal amount of ideal monoatomic gas. दो आइडियल वेसल्स हैं, दो आइडेंटिकल वेसल्स हैं जिनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है. द पिस्टन ऑफ ए इज फिक्स्ड, ए का पिस्टन फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पर एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा होगा. तो ए के अंदर हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पर एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ए के अंदर आइसोकोरिक प्रोसेस जैसे आएगा वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन होता है पी डी वी का इंटीग्रेशन विच इज डी वी इज जीरो, तो वर्क डन विल बी जीरो. एंड द प्रोसेस बी का जो पिस्टन है वो फ्री है, मतलब फ्री पिस्टन है, मतलब हम जब भी पिस्टन हमें फ्री दिया और कुछ नहीं बोला गया तो ये मासलेस पिस्टन होगा. और यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस है. सेम अमाउंट ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय ए एंड बी. ए के अंदर भी डेल्टा क्यू हीट अब्सॉर्ब हुई है, तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखे तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू यहाँ पर आ जाएगा, डब्ल्यू जीरो हो जाएगा. और अगर हम बी के अंदर डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू जीरो नहीं होगा. बट बी की इंटरनल एनर्जी का चेंज जो दिया हुआ है वो 100 जूल दिया हुआ है, तो ए की इंटरनल एनर्जी का चेंज हमें बताना है. तो अगर हम बी के अंदर देखें तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा क्यू दोनों में सेम है. अगर मैं इसको यहाँ पर डेल्टा क्यू तो सेम है, अगर मैं डेल्टा यू ए का लिख देता हूँ, यहाँ पर डेल्टा यू बी का लिख देता हूँ और वर्क डन यहाँ पर बी का लिख देता हूँ, तो डेल्टा क्यू, अब डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू यहाँ पर होगा एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी. और हम जानते हैं वर्क डन, जो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन लिखते हैं वो लिखते हैं पी डेल्टा वी, जिसको हम एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी. सो नाउ दिस विल बी degree of freedom, as there is a monoatomic gas, degree of freedom will be 3, so this will be 3 by 2 nRT plus 3 by 2 nR delta T plus nR delta T, which will be 5 by 2 nR delta T. This will be delta Q. And the given data is, if B's internal energy increases by 100 joule, it means B की internal energy का change, this is the internal energy का change of B. ये internal energy का change है B का, मतलब 3 by 2 nR डेल्टा टी की वैल्यू हमें दी हुई है 100 जूल. नाउ क्योंकि डेल्टा यू दोनों का सेम है, डेल्टा क्यू दोनों का सेम है, सॉरी, अगर डेल्टा क्यू दोनों का सेम है इसका मतलब यहाँ पर ये जो 5 by 2 nR डेल्टा टी होगा वही डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का चेंज हो जाएगा ए का, विच विल बी 5 by 2 nR डेल्टा टी. नाउ द nR डेल्टा टी T's value, nR delta T's value is 200 by 3. So if we put 5 by 2 into 200 by 3, we will get the value of delta U as 500 by 3, which will be the answer of this problem. Now let's move to the next question. The next question is, an ideal gas undergoes a quasi-static reversible process in which its molar heat capacity remains constant. तो जो भी ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि क्वासी स्टैटिक भी है, रिवर्सिबल भी है, और उनकी मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, जिनको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहा जाता है. अगर हम उनकी बात करें, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय पी वी टू द पावर एन एज अ कांस्टेंट, देन एन इज गिवन बाय सी पी एंड सी वी आर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली. तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इस प्रकार से दिया जाता है पीवी की पावर एन टू दी पीवी टू दी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, तो जो इसकी स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है सीवी अपॉन आर. ये यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है पीवी टू दी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पर सी इक्वल टू जो फॉर्मूला आएगा C इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन. तो हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है n की.
तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू बताना चाहते हैं, और किसकी टर्म्स में बतानी है हमको n की वैल्यू? n की वैल्यू हमको बतानी है Cp, C और Cv की टर्म्स में। तो हमें यहाँ पर C पता है, Cv पता है, तो हमको यहाँ पर Cp को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखते कैसे होगा वो। तो हम यहाँ पर 1 माइनस एन, सो हम यहाँ पर n की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर पहले इसको लिख सकते हैं C माइनस सी वी इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस एन। सो 1 माइनस एन विल बी इक्वल टू R अपॉन C माइनस सी वी। सो नाउ n will be equal to 1 minus R upon C minus CV. So now n will be equal to C minus CV into C minus CV minus R, and we know that Cp minus Cv equal to R. So Cp will be equal to Cv plus R. So now we can write it as n equal to C plus C minus Cv plus R upon C minus Cv, and Cv plus R will be Cp. So n will be equal to C minus Cp upon C minus Cv. This will be the answer of this problem. So C minus Cv upon C minus Cp upon C minus Cv. It is option number C. Now let's move to the next question. The next question is, an amount Q of heat is added to a monoatomic ideal gas in a process in which the gas performs a work Q by 2 on its surrounding. Find the molar heat capacity for the process. मतलब एक प्रोसेस है जिसके अंदर Q अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड, मतलब जब भी हीट सिस्टम को दी जाती है तो उसको हम बाई कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं। तो Q अमाउंट ऑफ हीट को हमने ऐड किया है एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के अंदर, जिसमें ये जो है गैस जो वर्क करती है वो Q by 2 करती है अपनी सराउंडिंग के ऊपर। फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस। तो हमें यहाँ पर पता है, जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख सकते हैं, Q बराबर W प्लस डेल्टा यू। सो यहाँ पर Q इक्वल टू W इज Q by 2 प्लस डेल्टा यू। सो डेल्टा यू बिकम्स Q माइनस Q by 2 एज Q by 2। फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस। तो हम जानते हैं कि हमें मोलर हीट कैपेसिटी बतानी है, तो हमें पता है Q जो होता है वो होता है NC डेल्टा T, एंड जो हमारे पास में डेल्टा यू होता है वो होता है F/2 NR डेल्टा T। या फिर हम इसको मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हम इसको, खैर हम इसको NCV डेल्टा T भी लिख सकते हैं, बट हम इसको इसी टर्म्स में लिख सकते हैं। अब हमारे पास में हमें चाहिए Q, हमें चाहिए C मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब हमें C चाहिए विच विल बी Q अपॉन N डेल्टा T। सो अब यहाँ पर Q की वैल्यू तो कैपिटल Q है ही सही। अब हमें यहाँ पर F/2 NR डेल्टा T, यहाँ से हमें एक और Q by 2 की वैल्यू, यहाँ से हमको डेल्टा यू मिल गया Q by 2 विच इज F/2 NR डेल्टा T। सो यहाँ से आपके पास में N डेल्टा T की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपके पास में N डेल्टा T की वैल्यू आ गई Q by FR। सो इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें बोल सकते हैं जो हमारे पास में C आया वो आया, यहाँ से N डेल्टा T की वैल्यू आई Q अपॉन FR। सो Q गेट्स कैंसल्ड आउट। सो यहाँ पर आपके पास में जो C की वैल्यू आई वो F इंटू आर आई, और क्योंकि ये मोनोएटॉमिक गैस थी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3। सो द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी 3R। सो द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी C इक्वल टू 3R। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A given quantity of an ideal gas is at a pressure P and absolute temperature T. The isothermal bulk modulus of the gas is, तो bulk modulus का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस dP अपॉन dV by V, means we can write it as minus dP by dV times V. Now since the process is isothermal, so isothermal process की इक्वेशन क्या होगी? PV इक्वल टू NRT, where T is constant, NR are always constant. So PV equal to constant. This is the equation of isothermal process. So if we differentiate it, we will get PdV plus VdP as 0. So dP by dV will become minus P by V. So if we put the value of minus P by V here, we will get B equal to minus of minus P by V times V. V gets cancelled out, minus gets cancelled out, so bulk modulus will be P. So the answer of this problem will be B. Now let's move to the next question. The next question is, a given mass of a gas expand
फ्रॉम अ स्टेट ए टू द स्टेट बी बाय 3 पाथ्स 1, 2 एंड 3 एज शोन इन द टीवी इंडिकेटर डायग्राम। तो यहाँ पर टेम्परेचर, जब भी यहाँ पर ग्राफ का क्वेश्चन आता है, ये हमेशा याद रखें ग्राफ किन दो चीज़ों के बीच में दिया हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। इफ W1, W2 and W3 respectively be the work done by the gas along the 3 paths, then अगर पहले पाथ में वर्क डन W1 है, दूसरे पाथ में W2 है और तीसरे पाथ में W3 है, तो हम वर्क डन के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस टीवी ग्राफ को, इस टीवी इंडिकेटर डायग्राम को पीवी इंडिकेटर डायग्राम में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आपके पास में डायरेक्ट एक तरीका होता है कि पीवी का एरिया अंडर द कर्व होता है, वो वर्क डन को देता है। तो पहले वाला प्रोसेस जो आपको दिख रहा है यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ना पड़ेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले वाले ग्राफ का ये वाला हिस्सा जो होगा उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर बढ़ रहा होगा। उसके बाद में कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, तो एक आइसोथर्म यहाँ से शुरू होगा और उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो ये वॉल्यूम बढ़ गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ से चले और यहाँ तक किसी वॉल्यूम तक आ गए, और अगेन जो हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग वॉल्यूम जो था वो कम रहा होगा और फाइनल वॉल्यूम रहा होगा वो ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि ए से बी जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हम यहाँ से पहले हम चले थे कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर बढ़ाया था हमने, उसके बाद में यहाँ से हम यहाँ कहीं पहुँच गए। बट हम जब जहाँ पर जिस पॉइंट पर हम पहुँचे, अगर आप यहाँ पर इस वाली स्टेट को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं, तो ये टीवी, ये यहाँ पर टीवी ग्राफ का जो है वो ओरिजिन से पास होता है। इसका मतलब T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है मतलब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब A पॉइंट का जो प्रेशर होगा वही B पॉइंट का प्रेशर होगा। इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग जहाँ से हुई है ये ग्राफ वहीं पर ही आकर ख़त्म होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ यहाँ से आया होगा वो यहाँ आकर ख़त्म होगा। ये एक आइसोथर्मल ग्राफ है। तो ये हुआ आपका ग्राफ नंबर 1। नाउ फॉर ग्राफ नंबर 2, अगर हम ग्राफ नंबर 2 की बात करते हैं तो ग्राफ नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ तक गए थे, ये हमारा पहला वाला ग्राफ है। नाउ ग्राफ नंबर 2 में प्रेशर कांस्टेंट है जो कि हमें दिख रहा है। तो ग्राफ नंबर 2 को मैं अलग कलर से प्लॉट करता हूँ। तो ग्राफ नंबर 2 प्रेशर कांस्टेंट ए पॉइंट से शुरू हुआ और बी पॉइंट तक पहुँचा। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। नाउ थर्ड वाले ग्राफ के लिए देखें तो पहले कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम बढ़ता है। तो पहले कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम बढ़ता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये वॉल्यूम बढ़ गया आपका, अगेन एक आइसोथर्म होगा। और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ये वाला। तो ये पहला ग्राफ हुआ। अगर मैं दूसरे वाले ग्राफ को रेड से बनाऊं तो ये आपका दूसरा वाला ग्राफ हुआ, और ये आपका ये पहला ग्राफ हुआ ब्लैक वाला, दूसरा वाला ग्राफ हुआ, और ये रेड वाला आपका तीसरा वाला ग्राफ हुआ। अब आप इजीली देख सकते हो कि एरिया अंडर द कर्व फर्स्ट वाले के अंदर सबसे ज़्यादा है, सेकंड वाले के अंदर उससे थोड़ा कम है, और थर्ड वाले के अंदर एरिया अंडर द कर्व सबसे कम है। इसका मतलब जो वर्क होगा वो फर्स्ट वाले प्रोसेस में सबसे ज़्यादा होगा, सेकंड वाले प्रोसेस में उससे कम होगा, और थर्ड वाले प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो सबसे कम होगा। सो द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर हमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। अब हमें कुछ चीजें यहाँ पर भी बतानी है, ऑप्शन देख रहे हैं हमको। ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, ए से लेकर बी तक। अगर अब आप यहाँ पर भी अगेन वापस चाहो तो आप पीवी डायग्राम बना सकते हो। ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब ए से लेकर बी तक कुछ इस प्रकार से, अगर हम किसी आइसोथर्म की बात करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट वाले ग्राफ्स को आइसोथर्म्स बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक आइसोथर्म की बात करूँ तो ये यहाँ से शुरू हो रहा होगा ए पॉइंट, और ये यहाँ जा रहा होगा जिस पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा और प्रेशर बढ़ रहा होगा। उसके बाद में अगर हम बी से लेकर सी तक की बात करें तो बी से लेकर सी तक एक पीटी ग्राफ जो है, एक स्ट्रेट लाइन है,
जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब B से लेकर C तक जाने में प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो B से लेकर C तक जाने में प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, चलो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ाएं टेम्परेचर भी बढ़ाएं तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम बी पॉइंट से किसी सी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। नाउ सी से लेकर अगर हम डी तक बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो है आपका प्रेशर घट रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर घट रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर आप घटा दो। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप प्रेशर घटाओगे तो आप जानते हो PV इक्वल टू NRT होता है। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो C से लेकर D तक किसी ग्राफ पर आप इस तरह से पहुंचोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो अगेन एक आइसोथर्म होगा, और D से लेकर A तक वापस ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब वापस वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर घट रहा होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर घट रहा होगा, ये वाला ग्राफ। तो आप वापस ए पॉइंट पर आ जाएंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर घट रहा होगा, मतलब ये वाला ग्राफ आपका आ जाएगा। मतलब ये आपका ये पूरा का पूरा ABCD प्रोसेस जो है वो यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर ये कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया आपका। अब देख लेते क्या होगा, क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया ड्यूरिंग प्रोसेस AB वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। A से लेकर B तक, A से लेकर B तक तो एरिया ये रहा, लेकिन वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरे वाले ऑप्शन की बात करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस CD, C से लेकर D तक वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। C से लेकर D तक एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस BC, B से लेकर C तक चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग। B से लेकर C तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन तो हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये कम टेम्परेचर वाला आइसोथर्म है, एक ज़्यादा टेम्परेचर वाला आइसोथर्म है। आइसोथर्म जो होता है वो PV बराबर कांस्टेंट ग्राफ्स होते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो ये नीचे वाले आइसोथर्म को ऊपर वाले आइसोथर्म तक बढ़ाता है, पहुंचाता है। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर बढ़ाता है, और आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती है, और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब इसका आंसर जो होगा C होगा। नन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C ऑन PV डायग्राम थ्रू टू प्रोसेसेस AOC and ABC as shown in the figure. Process AOC is isothermal. अगर प्रोसेस, अब ये बिल्कुल PV ग्राफ दिया हुआ है, हमें कुछ भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, प्रोसेस AOC रिक्वायर्स मोर हीट देन प्रोसेस ABC। अगर हम हीट की बात करते हैं तो हीट होती है, तो अगर हम A से लेकर C तक बात करें तो डेल्टा U जो होता है वो स्टेट वेरिएबल होता है, तो डेल्टा U A से लेकर C तक, चाहे आप AOC वाले पाथ से जाएं चाहे आप ABC वाले पाथ से जाएं, वो दोनों में सेम होगा। बात करते हैं, हमें बात करनी है हीट की, तो हीट की बात करनी तो हम वर्क की बात करते हैं। तो अगर हम वर्क की बात करें A से लेकर C तक, तो अगर आप AOC वाले पाथ से जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्क डन, जो कि आप ABC वाले पाथ से जाएंगे तो वो वर्क डन कम होगा। तो हम जानते हैं Q बराबर डेल्टा U प्लस W होता है। तो अब अगर हम AOC से बात करें, AOC, तो डेल्टा U जो होता है, तो Q बराबर डेल्टा U प्लस W होता है। तो सिंस Q बराबर डेल्टा U प्लस W, सो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U दोनों में सेम है। W जिसका ज्यादा होगा उसकी हीट ज्यादा होगी, इसका मतलब AOC विल रिक्वायर मोर हीट, बिल्कुल सही बात है, देन प्रोसेस ABC, सही बात है, प्रोसेस AOC को ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। दोनों सेम ABC रिक्वायर्स मोर हीट, गलत बात। बोथ रिक्वायर्स सेम हीट, बिल्कुल गलत बात। डेटा इज इनसफिशिएंट। तो हमारा आंसर है इस प्रॉब्लम का, बड़ी ही सिंपल प्रॉब्लम थी, इसका आंसर है हमारा पहला ऑप्शन नंबर A, कि प्रोसेस AOC को जो है वो ज्यादा हीट रिक्वायर होती है,
प्रोसेस ABC के कंपैरिजन में. So now let's move to the next topic, next question. The next question is, a cyclic process ABCA shown in the VT diagram is performed with a constant mass of an ideal gas. Show the same process on PV diagram in the figure. CA is parallel to volume axis and BC is parallel to temperature axis. BC is parallel to temperature axis. BC is parallel to temperature axis. CA is parallel to volume axis. तो करेक्ट पीवी डायग्राम क्या होगा? सो नाउ अभी हम यहाँ पर ए से शुरू होते हैं और ए से शुरू होकर हमको जाना है बी पर. तो ए से शुरू होकर हमको बी पर जाना है, जो कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है. मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब PV इक्वल टू NRT होता है, हम सभी जानते हैं. तो प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा. मतलब A से लेकर B तक वही प्रोसेस होगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर बढ़ रहा होगा और वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा. तो A से लेकर B तक प्रेशर कांस्टेंट इसमें भी है, वॉल्यूम इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है. मतलब ये तो बिल्कुल हमारा ग्राफ नहीं हो सकता. और इसमें भी घट रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा ग्राफ नहीं हो सकता. अब हम बात करते हैं B से लेकर C तक. B से लेकर C तक अगर हम बात करें तो B से लेकर C तक वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर घट रहा है. अगर B से लेकर C तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, B से लेकर C तक वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर घट रहा है. टेम्परेचर घट रहा है मतलब ये एक ऊपर वाले आइसोथर्म से एक नीचे वाले आइसोथर्म को मिला रहा होगा. मतलब B से C तक ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो ये इस तरह से जा रही है लाइन, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है. यहाँ पर हमें यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर घटाना है. इसका मतलब B से लेकर C तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर घट रहा है. ये वाला आपका ग्राफ हो गया. उसके बाद में C से लेकर A तक, तो वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है A, बट C से लेकर A तक टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम घट रहा है. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर PV इक्वल टू NRT, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये आइसोथर्म हो गया, वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा. मतलब A will be the answer of this problem. The next question is, calculate the heat lost from the system in going through the cyclic process shown in the figure. ये एक फिगर हमें दिया हुआ है जिसमें एक साइक्लिक प्रोसेस दिखाया हुआ है. इस साइक्लिक प्रोसेस में हमें बताना है हीट लॉस फ्रॉम द सिस्टम. नाउ यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि एक्स एक्सिस पर यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है और वाई एक्सिस पर यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है. बट जनरली आपको पता है कि पीवी डायग्राम जो हमें दिया जाता है उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम होता है और वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर होता है. तो अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करें तो ये वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम प्रेशर कर दें और एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम वॉल्यूम कर दें तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 300 सेंटीमीटर क्यूब से 300 किलो पास्कल की तरफ जा रहा है. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 300 अगर किलो पास्कल होगा तो यहाँ पर 300 सेंटीमीटर क्यूब होगा और यहाँ पर 300 किलो पास्कल होगा. तो ये 300 वॉल्यूम जो है वो 300 से 300 जा रहा है. मतलब ये जो क्लॉकवाइज साइकिल जो हमें वीपी डायग्राम में दिख रहा है वो हमें पीवी में एक्चुअल में वो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगा. और हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है. तो वर्क डन जो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, वो हम वर्क डन लिख सकते हैं एरिया अंडर द साइकिल से, इसका एरिया निकाल कर. बट इसका एरिया निकालने के समय आप एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो प्रेशर दिया हुआ है वो किलो पास्कल के अंदर दिया हुआ है और एक्स एक्सिस के अंदर जो वॉल्यूम दिया है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है. इसलिए इसका एरिया लिखते समय हम डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन नहीं, सर्कल का एरिया नहीं लिख सकते. रीज़न यह है कि यहाँ पर दोनों एक्सिस पर यूनिट्स डिफरेंट है. तो हमको यहाँ पर अगर इसका एरिया लिखना होगा जो कि वर्क डन देगा, तो वर्क डन जो होगा हमारे साइक्लिक प्रोसेस का वो होगा पाई ए बी, विच विल बी नेगेटिव. तो यहाँ पर नेगेटिव का वर्क डन होगा माइनस ऑफ पाई ए बी. पाई ए बी में हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर प्रेशर वाली जो एक्सिस है यहाँ पर और वॉल्यूम वाली जो एक्सिस है उन दोनों का हाफ लेना होगा. तो अगर ये A है और ये B है तो हमारा वर्क डन होगा पाई ए बी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली B जो हो जाएगा आपका 300 माइनस 100 विच इज़ 200 डिवाइडेड बाई 2. तो B हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड जो आपका A हो जाएगा वो हो जाएगा 300 माइनस 100 अगेन 200 डिवाइड बाई 2 विच विल बी 100 किलो पास्कल. So now the work done of this cycle will be minus of
पाई इंटू 100। अब हम क्योंकि हमें आंसर जूल में दिए हुए हैं तो सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होंगे और 100 इंटू ये 10⁻³ पास्कल। तो ये जो वर्क डन आ जाएगा आपका जूल के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वर्क डन विल बी माइनस ऑफ 10 पाई विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पाई की वैल्यू 3.14 अगर हम लिखेंगे माइनस 31.4 जूल। नाउ हमसे पूछा है कैलकुलेट द हीट लॉस फ्रॉम द सिस्टम। हम जानते हैं किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। एंड डेल्टा यू क्योंकि हम एक ही पॉइंट से शुरू होकर वापस वहीं आ रहे हैं तो डेल्टा यू जो कि एक स्टेट फंक्शन होता है वो 0 हो जाएगा। मीन्स जो डेल्टा क्यू होगा वो डब्ल्यू के बराबर होगा विच इज़ माइनस 31.4 जूल। मतलब जो हीट लॉस्ट है नेगेटिव हीट का मतलब है हीट लॉस्ट है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर। तो यहाँ पर जो हीट लॉस्ट है सिस्टम से वो होगी 31.4 जूल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज दैट two heat engines are connected in series such that the heat exhaust of the first engine is used as the heat input of the second engine as shown in the figure. The efficiencies of the engines are eta 1 and eta 2 respectively. The net efficiency of the combination is given by. तो ये हमारे पास में यहाँ पर हमको दो हीट इंजन्स का सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाया गया है जहाँ पर पहले हीट इंजन की एफिशिएंसी eta 1 है, दूसरे हीट इंजन की एफिशिएंसी eta 2 है। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि eta 1 जो होगा हीट इंजन में जो एफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो वर्क डन अपॉन Q1 दिस विल बी द एफिशिएंसी eta 1 एंड eta 2 विल बी वर्क डन W2 अपॉन हीट इनपुट Q2। नाउ जब हमने इन दोनों को सीरीज में जोड़ा है तो हमसे पूछा गया है कि नेट एफिशिएंसी इस कॉम्बिनेशन की क्या होगी। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन की नेट एफिशिएंसी निकालें तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में अगर हम देखेंगे तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में हीट इनपुट तो Q1 ही था लेकिन जो वर्क डन है वो W1 प्लस W2 है। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन की एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ कॉम्बिनेशन ईटा विल बी W1 प्लस W2 टोटल वर्क डन अपॉन हीट इनपुट विल बी Q1। नाउ हमको चाहिए eta 1 और eta 2 की फॉर्म में इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन राइट दैट दिस वर्क डन W1 दिस हीट Q1 दिस वर्क डन W1 एंड दिस Q2 इज रिलेटेड एज कि जितनी हीट हमने इस इंजन को दी है, कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता, उस इंजन को जितनी हीट दी है उसमें से कुछ वर्क परफॉर्म किया जा रहा है और कुछ हीट जो है वो सिंक को ये सिस्टम जो है वो सिंक में फेंक देता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं Q1 मस्ट बी इक्वल टू W1 प्लस Q2। यहाँ पर कोई भी साइन कन्वेंशन नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको मॉड में भी लिख सकते हैं बट हम यहाँ पर ये विदाउट साइन कन्वेंशन है, मतलब Q1 का मॉड इक्वल टू W1 का मॉड प्लस Q2 का मॉड, और सिमिलरली यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन के साथ ही है ये। अगेन अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें नीचे वाले के लिए तो Q2 का मॉड मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन W2 का मॉड प्लस Q3 का मॉड। नाउ हमें चाहिए कि हम इस ईटा ऑफ कॉम्बिनेशन को eta 1 और eta 2 की फॉर्म में लिख सके। तो ये आ गया W1 अपॉन Q1 प्लस ये आ गया W2 अपॉन Q2। नाउ W1 अपॉन Q1 डायरेक्टली eta 1 है बट हमें W2 अपॉन Q2 को eta 2 की फॉर्म में, यहाँ पर हमें W2 अपॉन Q2 नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमें W2 अपॉन Q1 मिल रहा है, W2 अपॉन Q1 मिल रहा है, सॉरी ये W2 अपॉन Q1 मिल रहा है हमें यहाँ पर। अब हम अगर इसको बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं W1 अपॉन Q1 प्लस W2 अपॉन Q1 इंटू Q2 बाई Q2। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया W1 अपॉन Q1 प्लस W2 अपॉन Q2 इंटू Q2 बाई Q1। नाउ अगर हमें यहाँ पर ये eta 1 मिल चुका है, eta 2 मिल चुका है, और अगर हम Q2 और Q1 को किसी तरह से वर्क डन में कन्वर्ट कर लें तो हमारा जो है वो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा यहाँ से। तो हम अगर इसका रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो पहले वाले सिस्टम के अंदर जो हीट हमारी निकल कर आई थी Q2 और दूसरे वाले सिस्टम के अंदर वही इनपुट हीट बनी है, अगर हम यहाँ पर
इन दोनों को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पर हमें लिखना है Q2 बाई Q1। तो हमें यहाँ पर Q2 बाई Q1 लिखना है, तो हम Q2 को रिप्लेस कर सकते हैं। Q2 को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं कि हम Q2 को लिख सकते हैं Q1 माइनस W1। तो अगर हम Q2 को Q1 माइनस W1 लिख दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q2 को लिख देंगे Q1 माइनस W1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में W1 बाई Q1 प्लस W2 बाई Q2 इंटू Q2 को हम लिख देंगे Q1 माइनस W1 अपॉन Q1, विच विल बी eta of this system will be W1 by Q1 plus W2 by Q2 into 1 minus W1 by Q1, and since we know that W1 by Q1 is eta 1 plus this will be eta 2 and this will be again eta 1. So the answer of this problem is eta 1 plus eta 2 into 1 minus eta 1. So the answer of this problem will be eta 1 plus eta 2, eta 1 plus eta 2 into 1 minus eta 1 into 1 minus eta 1. So the answer of this problem will be C. Now let's move to the next question. The next question is, 3 Carnot engines operate in series between a heat source at a temperature T1 and a heat sink at a temperature T4. There are 2 other reservoirs at temperatures T2 and T3 as shown in the figure. If T1 is greater than T2, which is greater than T3 and finally greater than T4, the 3 engines are equally efficient if. यहाँ पर हमें 3 हीट इंजन्स दिखाए गए हैं। अब हम जानते हैं कि हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 1 माइनस T2 बाई T1, तो 1 माइनस T2 बाई T1 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम ईटा 2 इसकी एफिशिएंसी बोलेंगे तो हो जाएगी 1 माइनस T3 बाई T2, एंड सिमिलरली जो थर्ड इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस T4 बाई T3। सो अगर ये तीनों इंजन्स इक्वली एफिशिएंट है, इसका मतलब ईटा 1 मस्ट बी इक्वल टू ईटा 2 मस्ट बी इक्वल टू ईटा 3, तो ईटा 1 मस्ट बी इक्वल टू ईटा 2 मस्ट बी इक्वल टू ईटा 3। नाउ ईटा 1 की वैल्यू जो है वो है 1 माइनस T2 बाई T1 और ईटा 2 की वैल्यू है 1 माइनस T3 बाई T2। अगर ये दोनों बराबर होंगे इसका मतलब T2 बाई T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 बाई T2। सो T2 बाई T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 बाई T2, T3 बाई T2। सो T2 विल बी T2 स्क्वायर विल बी T1 इंटू T3। नाउ अगेन ये हमने इन दोनों से ये रिजल्ट निकाला है। अगेन अगर हम ईटा 2 और ईटा 3 की एफिशिएंसीज को इक्वल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा T3 बाई T2 मस्ट बी इक्वल टू T4 बाई T3। सो इन दोनों से हम ये बोल सकते हैं कि T3 बाई T2 मस्ट बी इक्वल टू T4 बाई T3। सो यहां से हम देख सकते हैं T3 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू T2 इंटू T4। एंड अगेन हम 1 और 3 को भी कंपेयर कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास में। हमारे पास में एक ऑप्शन है T2 जो है वो T1 और T4 की फॉर्म में दिया है और T3 जो है वो T1 और T4 की फॉर्म में दिया है। मतलब हमें T2 और T3 को T1 और T4 की फॉर्म में लाना है। तो अगर हम इसको लाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें T2 और T3 को T1 और T4 की फॉर्म में लाना है, T2 और T3 को T1 और T4 की फॉर्म में लाना है, इसका मतलब हमें T2 यहाँ से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में आ रहा है, अगर हम यहाँ से T3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो हमें T2 मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे देते हैं, और इन दोनों इक्वेशन से हम पहले T3 को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो T2 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू T1 इंटू T3 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी T2 T4 की पावर हाफ। नाउ ये T2 को हम वापस इधर ले जाएंगे, तो T2 को जब हम वापस इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा T2 का स्क्वायर इंटू T2 दी पावर माइनस हाफ मस्ट बी इक्वल टू T1 इंटू T4 टू दी पावर हाफ। नाउ हम इसको लिख सकते हैं T2 की पावर 3/2 मस्ट बी इक्वल टू T1 इंटू T4 की पावर हाफ। सो हम अगर यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा T1 स्क्वायर इंटू T4 इज T2 का क्यूब। सो T2 विल बी T1 स्क्वायर T4 का
1/3 power. So the answer of this problem for T2 will be T1 square T4 to the power 1/3, T1 square T4 to the power 1/3, T1 square T4 to the power 1/3. This is the answer of this problem. And for T3 similarly, we can put the value of T2 in this expression, or in this expression we will get T3 as T3 equal to T1 into T4 to the power 2 का whole power 1/3. So the answer of this problem will be option number A. So now let's move to the next question. The next question is the approximate entropy change when 10 kg of an ideal gas having specific heat at constant volume CV equal to 5R/2 where R is 287 जूल पर kg पर केल्विन. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि R की वैल्यू जो है वो जूल पर मोल में नहीं दी है, जनरली वो जूल पर मोल में दी जाती है, यहाँ पर जूल पर केजी में दी है. इसका मतलब हमारा जो CV होगा एक्चुअल में वो भी जूल पर केजी के लिए ही डिफाइंड होगा, जूल पर केजी पर केल्विन के लिए डिफाइंड होगा. इसलिए हम लिखते समय ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी अगर हम हीट लिखेंगे या कभी भी हम इंटरनल एनर्जी का चेंज लिखेंगे तो वहाँ पर NCDT ना लिखकर NCVDT ना लिखकर MCVDT लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये पर किलोग्राम के लिए लिखा गया है, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स ना लिखकर मास लिखेंगे. तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. और आगे हमसे पूछा गया है इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ऑफ 100 किलो पास्कल एंड 300 केल्विन टू द फाइनल स्टेट ऑफ 200 किलो पास्कल एंड 500 केल्विन. मतलब जो हमारी इनिशियल स्टेट है उसमें जो हमारा प्रेशर P1 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 किलो पास्कल, और जो हमारा टेम्परेचर T1 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 300 केल्विन. इससे हमको फाइनल स्टेट पर इसको लेकर जाना है जहाँ पर प्रेशर P2 जो है वो 200 किलो पास्कल दिया हुआ है और टेम्परेचर जो T2 है वो 500 केल्विन दिया हुआ है. नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हमें निकालना है एंट्रोपी का चेंज. एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है dQ पर यूनिट टेम्परेचर. मीन्स हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टेम्परेचर इज डिफाइंड एज चेंज इन एंट्रोपी. सो फॉर DS, अब हमें यहाँ पर कोई भी DQ लिखने का हमारे पास में कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर ये भी पता नहीं कि प्रोसेस कैसा है और उसकी स्पेसिफिक हीट अगर हमें प्रोसेस पता होता तो शायद हम निकाल लेते, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर MCV∆T लिख देते, MCVDT लिख देते, उसको इंटीग्रेट कर देते, बट हमें वो पता नहीं है. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जब हमें DS निकालना है तो DQ को हम लिख सकते हैं DU प्लस DW अपॉन T. नाउ DU होता है जो हमारा वो मोलर, अगर CV जो है वो मोलर में दिया जाता है, पर मोल के लिए दिया जाता है, तो फॉर्मूला होता है NCVDT. बट अगर यहाँ पर हमें मास की फॉर्म में दिया गया है तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं MCVDT अपॉन T प्लस DW फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हमने ये सब लिखा है, बट हम DW लिखना चाहते हैं तो DW हम लिख सकते हैं PdV अपॉन T. नाउ फॉर चेंज इन एंट्रोपी हमको इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा, बट यहाँ पर प्रेशर जो है वो भी बदल रहा है. वॉल्यूम जो है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में हमें प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम के बारे में हमें कुछ पता नहीं है. तो हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं PV इक्वल टू nRT. बट यहाँ पर क्योंकि R जो है वो पर मोल के लिए नहीं दिया है, मास के लिए दिया है, गिवन मास के लिए किलोग्राम के लिए दिया है, पर किलोग्राम के लिए, तो हम इसको PV इक्वल टू mRT लिख सकते हैं. नाउ यहाँ से हम PdV की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो PdV ऑन पार्शियल डिफरेंशिएटिंग PdV प्लस VdP इक्वल टू mRDT. सो PdV विल बी mRDT minus VdP. So now we put this expression here. So it will be DS equal to MCVDT upon T plus PdV will be mRDT minus VdP. mRDT minus VdP upon T. So now MCVDT upon T plus mRDT upon T minus VdP upon T. Now again volume and pressure both are changing.
यहाँ पर हमारे पास में dt और t मिला है, बाकी सब कांस्टेंट है, dt और t बाकी सब कांस्टेंट है। यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही वेरिएबल है, तो हमें t को रखना पड़ेगा फ्रॉम अगेन आइडियल गैस इक्वेशन PV equal to mRT, so T will be equal to PV by mR. So if we put this here, we will get mCV dt upon T plus mR dt upon T minus VdP upon T. T will be PV by mR. So this V gets cancelled out. So we finally have the expression ds equal to mCV dt over T plus mR dt over T minus mR dP over P. Now if we want to calculate the change in entropy, we will have to integrate this whole expression. So on integrating both sides, when we are using when the variable is T, we will integrate it from T1 to T2, from T1 to T2 and from pressure P1 to P2. So we will get delta S as mCV. CV, we know that the value of CV is given in the question, which is 5R by 2. So mCV ln of t, 1 by t का इंटीग्रेशन होता है ln t, एंड जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे तो ln t2 माइनस ln t1, सो हम डायरेक्टली उसको बोल सकते हैं ln ऑफ t2 by t1 प्लस mr, अगेन यहाँ पर भी आ जाएगा आपका ln ऑफ t2 by t1 माइनस mr, यहाँ पर आ जाएगा आपका ln ऑफ p2 by p1. So on putting the values of the given data, we can easily calculate the change in entropy. हमें यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं टेम्परेचर का चेंज T2 T1 हमें दिया हुआ है, प्रेशर का चेंज हमें दिया हुआ है P2 P1 दिया हुआ है, तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज यू विल गेट द आंसर, approximate answer 3.14 kilojoule per Kelvin. So this is the solution of this problem. Thank you.